اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ ہوں کیا حال ہیں؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ، اپنا بتائیے۔ طاہر بھائی پہلے پورا مسئلہ سمجھیے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے ہو۔ ہم نے کہا نہیں، عالم الغیب نہیں، عطا علم غیب مانتے ہیں۔ کہہ رہا تمہارا سلمان اظہری نے یہ ایک آڈیو بھیجا میرے پاس، ویڈیو، کہہ رہا اس میں کہا ہے سلمان اظہری صاحب نے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے۔ اس نے جب ویڈیو بھیجا تو انہوں نے علم غیب کہا، تو میں نے کہا تجھ کو علم غیب اور عالم الغیب کو فرق نہیں پتا؟ کہہ رہا نہیں پتا، تم بتا دو۔ غلط فہمی ہو جاتی ہے آدمی، کوئی بات نہیں، غلط فہمی۔ ہاں، کیا نام ہے صاحب؟ حضرت ہم کو یہ بتائیے، سنیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام سے کیا مطلب ہے؟ بس کام سے کام رکھیے۔ نام تو بتائیے آپ کا نام۔ ہم کو اتنا بتائیے، ارے میں آپ کچھ بتاؤں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، ٹھیک؟ تو یعنی کہ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں میری بات تو سنیے، کہ دیوبندی علماء نے علم میری غیب بات تو کیوں سنیے۔ کہا۔ ارے میری بات تو ہاں سنیے، بولیے۔ آپ تو ایک دم شروع ہو گئے یار۔ کم سے کم میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے معلوم تو ہو کہ وہ آدمی کون ہے، کیا نام ہے ان کا۔ شروع نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم سوال کر رہے ہیں۔ ارے سوال کرنا بعد میں، پہلے اپنا نام تو بتاؤ، کم سے کم میں تعارف تو ہو جانا چاہیے کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے ہیں آپ؟ ہم یہاں تعریف سنانے کے لیے نہیں آئے بھیا، اور سمجھ گئے، کام نہیں ہے، زیادہ رات ہو گئی ہے، بس میرا سوال کا جواب دے میرا دیجیے۔ نام بتانے میں بھی ٹائم لگ رہا، تو میں نام نہیں بتا سکتے؟ دیکھیے، بحث میری آپ سے نہیں ہو رہی ہے، اس سے ہو رہی ہے۔ اس نے صرف یہ تم بحث کر بتانے لو کے لیے گے، آپ کو دیا ہے۔ تم بحث کر لو گے، بحث کر لو گے، تم ہیں؟ بحث کر لو گے؟ دیکھیے، عزت سے بات کر رہے ہیں تو بے عزت کرنا نہیں، میں بے عزت نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بحث کر لو گے آپ۔ ہیں؟ بحث کر لو گے آپ؟ بحث کر لیں گے۔ کر لو گے؟ کر لو گے تم؟ نہیں، آپ کر لو گے بحث؟ تم کر لو گے، بتاؤ۔ میں تو کر لوں گا۔ ہاں ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو میری بحث اس سے ہو رہی تھی، اس نے تم کو دیا، ہم بھی کسی اور کو دے دیں؟ تم تو کہہ رہے ہیں میں سوال کر رہا ہوں، یہ بحث کہاں ہو گئی؟ ہیں؟ تم تو کہہ رہے ہو میں سوال کر رہا ہوں، سوال کرنا تو سائل ہو گیا، آپ بحث کہاں ہو رہی ہے؟ تو یہ وہی بات ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو میں تبھی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم سوال کر رہے ہو تو تم سائل ہوئے۔ سنو تو پہلے پورا پہلے علم حاصل کرو کچھ۔ اگر تم سوال کرو گے تو ہوگا تم، اور اگر تم بحث کرو گے تو اپنا دعویٰ پیش کرو اور حکم لگاؤ۔ صرف بولا نہیں جاتا ہے، کیا سمجھے؟ سننے کا کچھ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ چلو بولو، اچھا تم بولتے رہو۔ اس سے میری بحث ہو رہی تھی، اس نے تم کو فون صرف اس لیے دیا ہے کہ تم مجھے عالم الغیب اور علم غیب میں فرق بتاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے، سمجھے؟ تو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، یعنی سلمان اظہری کو اعتراض ہو رہا ہے کہ علماء دیوبند نے علم غیب کا انکار کیوں کیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے۔ جس کے پاس علم غیب ہے اسے کیا کہا جائے گا پھر؟ اگر جس کے پاس دولت ہو اور وہ کسی راستے سے گزرے تو تم اس کو دیکھ کر کیا کہو گے کہ دیکھو دولت جا رہا ہے، کہ اسے کہو گے کہ مالدار جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی علم ہو اور وہ جا رہا ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ عالم جا رہا ہے؟ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے تو ان کو کیا کہا جائے گا پھر؟ بتاؤ۔ بولوں میں؟ بولوں؟ ہاں بولو۔ اگر آپ اجازت دیں تو بولوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں مفتی صاحب؟ ہاں میرا سوال ختم ہو گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے مسلک میں پل رہے ہیں، اتنا گندا مسئلہ ہے تمہارا کہ تم نام بتاتے ہوئے ڈر رہے ہو، تمہاری ہوا خراب ہو رہی نام بتاتے ہوئے بھی۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ عالم الغیب اور علم غیب میں فرق کیا ہے۔ عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم الغیب کے معنی ہوتے خود سے جاننا، خود سے جاننے والا، جو خود سے جانتا ہو، جو کسی کا دیا ہوا نہ ہو، اور علم غیب ہوتا وہ کسی کا عطا کیا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور عالم الغیب و شہادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا خود کا اپنا ہے۔ سنو، عالم الغیب کے بعد وہ شہادہ کا لفظ مت لاؤ۔ کیوں؟ دیکھو، یہ سنو، غیب کا لفظ دونوں میں ہے، صرف اس میں علم ہے اور تو فرق سمجھو نا۔ ہاں فرق سمجھو۔ اب سنو میری بات۔ عالم ہوگا، ارے سن چلو، عالم ہوگا تو اس کے پاس عالم اپنے نہیں ہوگا، قیاس کرو گے تم دوسرے کی بھی سنو گے تو اس کو علم ہوگا۔ ارے تم قیاس اپنی کرو گے یا دوسرے کی بھی سنو گے؟ تم اپنا قیاس کر رہے ہو یا اپنے مسلک کا قیاس کر رہے ہو؟ مسئلہ کا خیال نہیں کر رہے ہیں ہم۔ تو تم یہ بتلاؤ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانے، یہ کہے علم غیب تھا نبی کو، تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ تم نہیں مانو گے ایسے، تم بحث کرو گے۔ چلو بتاؤ کیا حکم لگے گا اس پہ؟ کیا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اللہ کی عطا سے، اس پر کیا حکم لگے گا؟
क्या हुक्म लगेगा? हाँ, वो तुम्हारी नजर में मुसलमान है, काफिर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब के माने गैब का इल्म, हाँ। नबी को गैब का इल्म नहीं था। तुम्हारा तो ये अकीदा है कि नहीं था, हाँ, और जो नबी माने को के हाँ इल्म का था। गैब, नबी को गैब का इल्म नहीं दिया गया अरे था, हाँ, उनको नहीं दिया गैब गया का था। इल्म नहीं था। अरे सुन तो लो यार, कम से कम सांस तो लो। तुम्हारा अकीदा ये है ना हाँ, कि बोलो। नहीं दिया गया था? नहीं, कुरान उनके की पास आयत पढ़ो, गैब का कौन सी इल्म आयत नहीं में था। लिखा हुआ कि नहीं दिया गया था? पढ़ो हैं? पढ़ो कुरान की आयत, कौन सी आयत में ऐसा कहा अल्लाह ताला ने कि हमने नबी को गैब का इल्म नहीं दिया? हैं? पढ़ो नबी का कुरान। इल्म नहीं दिया? हाँ पढ़ो, कौन सी कुरान की आयत में है? तुम ये दिखा दो कि नबी को इल्म दिया है। निकालो सूरह जिन, आयत नंबर 26-27। हाँ, कुरान लेके लगता है बैठा हुआ, बस आयत पढ़ो, रुको एक मिनट। आयत पढ़ो, तर्जमा करो। तुम यहाँ कुरान दिखा रहे हो, हमारे उलमाए देवान इतने ये बेवकूफ नहीं बैठे हैं जो कुरान में दलील होते हुए भी अगर तुम कुरान को मानते तो तुम तो उलमाए देवबंद को देख लिया, आंखें मीच के उलमाए देवबंद को मान लिया तुमने, कुरान को नहीं देखा। तुम्हारे उलमाए देवबंद खुद मानना है कि इल्म गैब दिया अल्लाह ताला ने। तुम बता रहे हैं, बता रहे हैं। देखो सुनो, सुन तो लो। कुरान उतरा अरब में, पढ़ा मिस्र वालों ने, लेकिन समझाया उलमाए देवबंद ने। हाँ हाँ, तुम अभी सुन लो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहो ऐसे ही, मियाँ मिट्ठू बनते रहो अपनी तारीफ कर करके ऐसे ही। अगर तुम कुरान को मानते नहीं, जो हकीकत है वो तुमको बता रहे हैं। तो लो, हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। अभी तुम हकीकत से वाकिफ नहीं हो। तुम अगर कुरान को मानते तो आज यहाँ नहीं होते। तुम लोगों के पास तो 1% भी नहीं है बेवकूफ कहीं का। अब बदतमीजी करोगे, बदतमीजी करोगे तुम तो नहीं कर रहे हो। और अब तबे करने लगे ना, मूड खराब कर दे रहे हो तुम लोग। हकीकत मालूम नहीं है तो मैं अगर तेरी बात मान लूं, मैं कुरान मानूंगा, तेरी बात मानूंगा मरदूस शैतान, मेरे देवबंद की मानूंगा, मैं कुरान मानूंगा। अब तेरी बात मानूंगा ना, मैं कुरान को मानूंगा। क्यों मानोगे? है मैं क्यों मानूंगा उन्हें? मैं काफिर मानूंगा उन्हें? मैं तो कुरान को मानूंगा, मैं तो कुरान मानूंगा। अब मैं अल्लाह की किताब मानूंगा, तेरे देवबंद वालों को मानूंगा। ले सुन निकाल 26-27। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। पढ़, इसका तर्जुमा कर। पढ़, ये गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अब पता कौन पसंदीदा रसूल है? अल्लाह के। तर्जुमा करो। कर दिया मैंने, कब सुना नहीं सुना है? गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। यानी रसूल जो पसंद है उसे उन्हें गैब पे मुतला कर देता है, ना किसी को नहीं करता। अब डूब के मर जा कहीं जा। अच्छा, मर कहीं जा जाके पेशाब कर इनके उलमाए देवबंद है कि अपने रसूलों को, अपने रसूलों को। हाँ, एक तो देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे महबूब तरीन इंसान और बंदे हैं, सबसे रसूल तो अल्लाह ताला ने गैब का इल्म दिया कि दिया नबी को, जब कुरान में कह रहा था अल्लाह ताला। जब उनमें इख्तिलाफ है, किसमें? जब उनमें इख्तिलाफ है और अक्सर उलमा ये कहते हैं कि उनके पास इल्म का गैब नहीं है, तो तुम दूसरे रसूलों को कह रहे हो। बताओ कितने झूठ बोल रहे हो। अरे बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी। सुनिए, आदमी टट्टी है। अरे आदमी यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। होता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, खबर देता हूँ कि जो तुम कुछ खा के आते हो, जो तुम अपने घर में छुपा करके आते हो। अब सुन दूसरी सुन कुरान की आयत देख, सूरह आले इमरान निकाल, आयत नंबर 179 निकाल ले। अच्छा, सुनो निकाल। अब निकाल उलमाए देवबंद की मानेगा, कुरान की मानेगा। अब मेरी बात सुन, तेरे थानवी ने हिफ्जुल ईमान में खुद माना है कि आपकी जाती मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना बकौल ज़ैद अगर सही है तो दरियाफ्त तरफ अमर ये है कि इस गैब से मुराद कुल गैब है या बाज। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो जानवर को, पागल को, मजनू को, जमी हैवानात बाहिम के लिए भी हासिल है, वो तो सबको माननी है। तेरा थानवी, अरे पहले मेरी सुन, तेरा थानवी सबको मानना है, तो इल्म देवबंद की मानेगा, कुरान मानेगा। सूरह आले इमरान निकाल, आयत नंबर 179 निकाल। कुरान को नहीं मानेगा मरदूस शैतान, उनकी मानेगा उलमाए देवबंद की। उलमाए देवबंद ने मतलब दीन फैलाया। निकाल वो सूरह आले इमरान निकाल, आयत नंबर 179 निकाल। हम यहाँ कुरान लेकर नहीं बैठे हैं, तुम बैठे हो तो तुम निकालो। तो फिर बहस करने को आया? तो कह रहा था मैं बहस ना करूंगा, बहस करने लगा।
अब इस पर खानवी पे क्या फतवा लगा गई मानिया इल्म गैब मानिया, ये जानवर पागल को मानिया वो तो बहस तो तुम कर रहे हो, तुमको सिर्फ इतना दिया गया है कितना कि तुम बताओ, लेकिन हम तुमसे इतना कि तुम आलिमुल गैब और इल्म गैब में फर्क बताओ। हाँ तो तुम कह रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अच्छा अलैहि वसल्लम सुनो नदीम भाई, जो आलिमुल गैब में और इल्म गैब में फर्क करे उस पर हुक्म लगा चलेगा, जो ये कहे कि आलिमुल गैब और होता है इल्म गैब और होता, हुक्म लगा चलेगा, तेरे अंदर हिम्मत है तो सुनो बता रहे हैं, सुनो इधर सुनो। अगर किसी के पास दौलत हो, अरे फिर अपना कयास करने लगा, कौन से आलिम ने कहा तेरे मिसालें नहीं चलती है, मिसालें दे रही हैं, तेरे कौन से आलिम ने कहा, तेरे कौन से आलिम ने कयास कर रहा है, पहले सवाल के मुताबिक हम तेरे कौन से आलिम ने कयास करा है ऐसा जो तू कयास कर रहा है, तू बता दिखा कौन से आलिम का तेरा ऐसा कयास पहले सवाल का तुमने जवाब किसी के पास दौलत है, दौलतमंद कहा जाएगा तो उसे क्या ये कहा जाएगा कि दुनिया का दौलतमंद है ये, अब उसके मुताबिक तो कहा जाएगा दौलत वाला है ये, या ये कहा जाएगा तमाम जहान का दौलत वाला है ये है। अगर किसी के पास इल्म है तो उसे इल्म वाले तो कहा जाएगा, ये कहा जाएगा जहान का इल्म वाला, यो जाहिल कहाँ पढ़ा है तू। अरे किसी के पास अगर इल्म है तो उसे ये कहा जाएगा कि इल्म वाला है ये, किसी के पास दौलत है ये कहा जाएगा दौलत वाला है ये कहा जाएगा उसे कि दुनिया की दौलत वाला है ये, तमाम जहान की दौलत वाला है, या उसे इल्म वाले को ये कहा जाएगा कि तमाम जहान के इल्म वाला है ये। क्या बेवकूफ है कौन है बे, क्या देवबंदी क्या गु खाते हो बे तुम बे, अब खाना खाते हो गु खाते हो। अबे सुनो इधर, पहला सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया, दूसरा चल कर सवाल कर, से बात कर रहे हो, सवाल कौन सा जवाब दिया, कौन से सवाल का जवाब दिया दो। हाँ सुनो बताओ, पहले मेरा सवाल का जवाब दो कि अगर किसी के पास दौलत हो और वो कहीं से गुजर रहा हो और तुमको मालूम है कि उसके पास दौलत है तो तुम उसे क्या कहोगे, दौलतमंद कहोगे, और उसका असल नाम जो पुकारा जाता है जिसे कि देखो क्या जा रहा है, कौन जा रहा है, क्या जा रहा। अगर किसी के पास दौलत हो तो अगर वो कहीं से गुजरता है तो लोग क्या कहते हैं कि मालदार जा रहा है। हाँ मालदार कह दे उसे, मालदार जा रहा है, हाँ मालदार कह दे तब भी कोई बात नहीं, मालदार जा रहा है, हाँ माल वाला है ये, माल है इसके पास, मालदार जा रहा है। मालदार का मतलब क्या होता है। अच्छा तू मुझे ये बता दे कि तुम देवबंदी क्या मतलब गोबर खाते हो या अनाज खाते हो। वो तो छोड़ो, वो तो छोड़ो, नहीं पता तो मुझे। अरे बेवकूफ, यहाँ बात आलिमुल गैब में और इल्म गैब में ये फर्क है कि आलिमुल गैब दुनिया का तमाम जहान का मालिक, और इल्म गैब जो है अता किया हुआ, इसी तरीके से उसे कहेगा तू, और मालदार भी कहेगा तो वो अपने वक्त का मालदार है। सुन सुनने का माददा पैदा कर, सुनने का माददा पैदा कर, जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब सुन उसे कहा। अरे सुन तो ले, बड़बड़ किए जा रहा, सुनता है नहीं, जवाब सुन नहीं रहा। चल पूरी कर पहले, तू पूरी कर, तेरी कितनी पूरी पहले बोल लिया, अब तू कहेगा बोलूंगा मैं। कोई अगर जाएगा किसी कोई दौलत तो तुम कहोगे कि देखो मालदार जा रहा है, ठीक है। और अगर किसी के पास कोई इल्म हो और वो जाए तो तुम उसे क्या कहोगे, इल्म वाला जा रहा है, और ये नहीं कहोगे कि आलिम जा रहा है, ये भी कह देंगे आलिम जा रहा है, ये भी कहोगे ना आलिम जा रहा है। इसमें कोई फर्क तो नहीं है ना, नहीं ना, ना। तो जब उन्होंने कहा है कि इल्म गैब का इनकार कहाँ से आया, तो गोया उसने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, तो जिसके पास इल्म गैब है तो गोया वो आलिमुल गैब है। अच्छा तू पढ़ा हुआ है कुछ, मुफ्ती साहब पढ़े हुए हो कुछ पढ़े हुए हो, इल्म हासिल किया है, वैसे प्रयास कर रहे हो। अगर कोई दौलतमंद गुजरा जा रहा है तो उसे दौलतमंद भी कह सकते हैं, मालदार भी कह सकते हैं, उसे ये नहीं कह सकते तमाम जहान का दौलतमंद जा रहा है ये तमाम जहान का, ये तमाम जहान कहाँ से आ गया भाई। और ये आलिमुल गैब में और इल्म गैब में ये तो फर्क है। अब जब तुम्हें ये मालूम नहीं है, तुम जाहिल होते हो, तुम्हारे अकाबिर तक के जाहिल हैं, तुम्हें ये तो पता नहीं लगता। आलिमुल गैब में यही फर्क है, और आलिमुल गैब वो है जो खुद से है, उसे अगर दौलतमंद है तो उसे दिया है किसी ने। और अबे बेवकूफ कहीं का, इल्म गैब यानी जिसके पास इल्म गैब है वो आलिमुल गैब है। कहाँ लिखा हुआ है, तेरी किताब में लिखा हुआ है कहीं? ये तेरे बाप की किताब में लिखा हुआ है क्या? तेरे घर से दिखाऊंगा मैं, तेरे घर से दिखाऊंगा। इल्म गैब दो तरह का होता है, तेरे घर के खुद कह रहे हैं तेरे अकाबिर, कुफर का फतवा लगाऊं उन पे, दिखाऊं? अबे बेवकूफ, तुम क्या कुफर का? तो बेवकूफ तेरे अकाबिर होंगे, फिर वो कह रहे हैं कि इल्म गैब दो तरह का होता है, एक अताई और एक जाती। तुमको इल्म गैब दो तरह का होता है, अताई और एक जाती। तेरे अकाबिर कह रहे हैं, उन पे लगा कुफर का फतवा, फिर क्या उन्हें काफी है वो? सुनो क्या काफी है, हम तुमको क्या काफी है वो? हम तुमको वाजे कर दिए। अबे नदीम भाई क्या ये बाबले बाबले कहाँ से ला करो तुम? मेरा खाली करने इस मरदूस शैतान को ये मालूम नहीं कि अगर कोई अगर आलिम जा रहा है तो उसे आलिम कह सकते हैं। अब आलिम में और आलम में फर्क मालूम नहीं होगा इसे, कि आलम क्या चीज हो, आलिम क्या चीज हो। इस मरदूस से कोई ये पूछे कि अब आलिम जा रहा है, ठीक है, या उसे ये कहेगा कि तमाम जहान का इल्म वाला जा रहा है, क्यों बे जाहिल? अगर कोई दौलतमंद जा रहा है तो उसे मालदार कहेगा तू, ये कहेगा दौलतमंद है, ये थोड़ी करेगा तमाम जहान के दौलतमंद जा रहा है। अबे मरदूस शैतान, आलिमुल गैब व शहादा अल्लाह है, वो तमाम जहान का मालिक, उसने सब हमको पैदा किया है। और जो इल्म गैब है वो अता किया हुआ है। इल्म गैब के माने है अता किया हुआ, किसी का हाथ दिया हुआ।
और आलिमुल गैब खुद से है उसे, वो तो खुद से आलिमुल गैब है, उसको अल्लाह के लिए कोई गैब थोड़ी है। अबे अल्लाह के लिए कोई गैब थोड़ी है, अल्लाह के लिए तो कोई चीज गैब ही नहीं है। इसको इल्म गैब की तारीफ भी नहीं। अच्छा इल्म गैब की तारीफ कर। अच्छा इल्म गैब की तारीफ बता क्या है, इल्म गैब की तारीफ इल्म बता गैब की क्या है, तारीफ कर। तारीफ कर क्या है, चल इल्म गैब की तारीफ कर। इल्म गैब कहते किसको है, तारीफ कर। इल्म गैब की बस तर्जुमा ये है छुपी हुई बात को जानने वाला। कहाँ लिखा है ये? छुपी हुई बात को जाने उसको आलिमुल गैब कहेंगे। अबे उल्लू का चोला है यार, गधा है ये। चल आलिमुल गैब की इल्म गैब की तारीफ कर दे मौलवी, आलिमुल गैब की इल्म गैब की तारीफ कर। इल्म गैब की तारीफ क्या है? अबे तारीफ करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे पास साफ वादे कर दे रहे हैं कि जिसके पास तू तो इल्म हो उसको आलिम कहेंगे। हाँ आलिम और कह जिसके सकते हैं, पास इल्म गैब हो उसको आलिमुल गैब कहेंगे। हाँ तो उसे आलिम कह सकते हो, आलिमुल गैब नहीं कह सकते। और जिसके पास दौलत है उसे दौलतमंद कह सकते हो, तमाम जहान का दौलत वाला नहीं कह सकते उसे, एक हद है। लेकिन आलिमुल गैब की कोई हद नहीं है। कहाँ से ला रहे हो? अबे मरदूस शैतान, आलिमुल गैब के माने ये तो है कि उसकी कोई हद ही नहीं है। आलिमुल गैब अल्लाह ताला के लिए कोई गैब नहीं है, कोई चीज भी, वो तो हर चीज का मुशाहदा कर रहा है हर वक्त, वो तो आलिमुल गैब है, तमाम आलम का गैब का जानने वाला, तमाम आलम का। और इल्म गैब वो होता है जो अल्लाह की अता से किसी को दिया गया हो, उसे कहते हैं इल्म गैब। तू जाहिल है, तू गोबर खाते हो, तुम देवबंदी हो, जितने तुम देवबंदी हो तुम जाहिल तो होते हो, पढ़े लिखे तो तुम होते हो नहीं हो, तुम पढ़ाया तो जाता नहीं, देखो तुम वैसे भेज देते। अभी हम दूसरे जगह हैं, ऐसा वर्ड इस्तेमाल मत करो, समझ गए? मैं इस्तेमाल यूं कर रहा हूँ कि अब तू हुक्म भी नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ तू हुक्म लगा दे। अगर कोई आदमी दो किस्म करता हो इल्म गैब की और आलिमुल गैब की अलग अलग किस्म बताता हो तो उस पर हुक्म लगा, फिर क्या लगेगा? पहली बात कि मुफ्तियों के अलावा किसी को फतवा देने का हुक्म नहीं है। काहे का फतवा? अगर हम गलत भी हैं तो किसी को फतवा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम मुफ्ती नहीं है। नहीं तो समझ गए? तो तुम फतवा कौन दे रहा है? बार बार के हुक्म लगा दो। अब तो तेरे एतराज ऐसे हैं, जब तू एतराज कर रहा है बरेलवियों पर तेरी जबान खुल रही है हर तरीके की, मतलब एतराज कर रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने सही कहा। इल्म गैब का इनकार करने वाले मुनाफिक हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक थे वो इनकार करते थे कि देखो वैसे तो नबी कहते हैं कि मैं जमीन की बातें, मतलब आसमानों की बातें जानता हूँ, आसमानों की खबरें देते हैं, और अब ये ऊँटनी गुम हो गया, जिनका ऊँटनी का पता नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौरन वही नाजिल हुई, कुरान की आयत नाजिल हुई, तो आपने कहा कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया, मैं बता रहा हूँ कि ऊँटनी फला जगह जाओ, महार उलझी हुई है उसकी, फला दरख्त में जाओ लिया और तुम वहीं निकली ऊँटनी को। तो अच्छा वो आलिमुल गैब है, वो खुद से जानने वाला है, खुद से अल्लाह ताला खुद से जानता है, उसके लिए कोई चीज गैब नहीं है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। और इल्म गैब जो है वो अल्लाह की अता से होता है। ये तुम्हारे आलिम नहीं माना है मुफ्ती साहब, रहते कहाँ हो तुम? इधर सुन लीजिए, मेराज के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अल्लाह से कभी बात किए हैं? अब मेराज पे आ गए हैं? अरे इसके आलिमुल गैब की और इल्म गैब की तो कर लो पहले। नहीं देखो, हम वहीं जाएंगे, कहाँ जाओगे? हम वहीं जाएंगे, कहाँ? आलिमुल गैब पे ही जाएंगे। हमको पहले बता दो कि मेराज के अलावा अल्लाह ने कहीं, मेराज के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कभी डायरेक्ट बात किए हैं? ये तो तुम ही बता सकते हो मुफ्ती साहब, मुझे तो इतना इल्म नहीं है। नहीं मालूम है ना तुमको? मुझे इतना इल्म ना है। मेराज के अलावा अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी डायरेक्ट बात नहीं की है, सिर्फ मेराज पे बात हुई थी। उसके अलावा हर वक्त वही आती थी। तो फिर उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक मेराज पे कोई बात ही नहीं हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर तुम्हारे सलमान अजहरी साहब कैसे कह दिए कि जो हुजूर ये बताया कि अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आदम अलैहिस्सलाम के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नूह अलैहिस्सलाम से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नूह अलैहिस्सलाम के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन बताया? तुम्हारा सलमान अजहरी साहब कह रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें कौन बताया? किसी ने नहीं बताया, गोया उनको इल्म गैब था। जबकि अल्लाह के पास वही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती थी। और डायरेक्ट जब अल्लाह से बात हुई है तो मेराज पे बात हुई है, और मेराज पे आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें नहीं किया कोई। तुम्हारे सलमान अजहरी साहब कैसे कह रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बात? सही बात है। मुफ्ती साहब का इस्तेदलाल बड़ा प्यारा है यार, कहाँ से सीखा तुमने इल्म यार, कमाल है तुम्हारे इल्म का यार, कमाल है। देवबंदियों के पास इल्म बड़ा होता। ये कुरान क्या चीज है? कुरान कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान खुद कह रहा है कुरान गैब है। गैब मानते हो कुरान को या कुछ और मानते हो? गैब कुरान गैब है। कुरान को पूरे को जानते हो तुम? अरे भाई जब अल्लाह ने डायरेक्ट ना मैं जो पूछ रहा हूँ, देखो तुम सवाल करते हो तो मुफ्ती साहब मैं तुम्हारी सुनता हूँ, मुझे बता दो कुरान को पूरे को जानते हो तुम? कुरान के सूरत को? कुरान को पूरे को जानते हो? सवाल नहीं आ रही, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ कुरान को आप पूरे को जानते हैं? कुरान के जानते हो पूरे को? कुरान के पूरे को?
हाँ हाँ, पूरे कुरान को जानते हो आप, कुरान तो सामने जाहिर है तुम्हारे, इसे तो जानते होगे। नहीं देखो, हम बताइए रहे तुमको कि हम आलिम नहीं है। आलिम नहीं हो, तभी तो मतलब तुम बहक रहे हो। तुमने आंखें बंद करके ना कि हम उलमाए सवाल देवबंद को करने के मानते हैं। आलिम बन सुनो जाता है, सुनो सवाल सुनो करने के आलिम बनता है ये सुनो भाई। सुनो, हाँ सुनो, बाकी कुरान बताइए। बताइए कुरान हजरत, के अंदर कुछ, जो कुरान के हजरत अंदर कुछ सुनिए, बात, अरे सुनो सुनो सुनो, होल्ड पे जो हजरत बोल रहे हैं, होल्ड पे जो ना हजरत सुनो बोल सुनो, रहे हैं, नजीम भाई वो तुम कह मत रहे बोलो हैं कि बीच में। सवाल करने के लिए सुनो आलिम सुनो, बन जाता है। हम कब कहे हैं कि अरे हम सुनो आलिम सुनो हैं? सुनो, तुमने अपना नाम भी नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है, देखो जो तुम्हें सुनो, मुखातिब करूँ वो नाम मेरा से लेके। रिकॉर्डिंग पे रखा होगा, सुनो सुनो, वो मेरी मेरा बात सुनो, रिकॉर्डिंग पे मेरी रखा बात सुनो, होगा। इधर सुनो, वो इधर अभी सुनो, तक अरे मैंने सुनो यार, रिकॉर्डिंग बड़बड़ सुना मत देंगे करो, तो हम कहे हो कि हम आलिम बड़बड़ हैं। मत करो। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जिनके तर्जुमा आज तक और सुबह क़यामत तक कोई कर नहीं पाएगा, जो अल्लाह और उसके महबूब ही जानते हैं, वो गैब है, समझे नहीं? वो हम जान रहे हैं, वो है हम जान रहे हैं कि जिसका जिसका तर्जुमा अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी और अल्लाह जानते हैं। हाँ, वो कौन सी आयत है, वो आयत हम जान रहे हैं। कौन सी आयत है? बस सूरत मुक़त्तआत जितने हैं, बस वही। हाँ, तो अब ये गैब है कुरान। और तुम्हारे अशरफ अली थानवी अपनी किताब मलफूजात उसमें बयानुल कुरान में लिख रहे हैं कि जितनी भी दुनिया के गैब हैं वो सारे लोहे महफूज पे हैं। जो पैदा होगा, जिसकी मौत आगी, कितने पैदा होने हैं, कितने मौत आने हैं, कितने किसकी तकदीर में रिस्क है, और कितना किसकी उम्र है, वो सब लोहे महफूज पे लिखा हुआ है लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं? क्या अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा है? मैं बताऊंगा, बयानुल कुरान में अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है सबकी उम्र है, सबको उम्रें, कितने बच्चे किस पे होंगे, कितनी जमीन रूहें आनी है जमीन पर, कितने मोमिन होंगे, कितने काफिर होंगे, सब के सब बातें सब लोहे महफूज पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि सारी सब? बातें तो दुनिया। उनका मफहूम कुछ और होगा। अभी हम समझ हम नहीं पा मफहूम रहे, है, ये उनका तो मफहूम समझाऊंगा कुछ और तुम्हें, होगा, हम तुमने तो आपको आंखें बता बंद करके देंगे। उलमाए देवबंद को मान लिया, लेकिन कुरान को नहीं माना तुमने। तुमने तो ये कह दिया कि उलमाए देवबंद है जो भी हमारे लिए है। अब देखो दूसरी हम किताब, बता रहे हैं ना कि अभी अभी हम बता रहे हैं तुमको कि अभी उनका मफहूम कुछ और होगा। हम हम मफहूम अभी बता समझ तो रहा नहीं हूँ पा मैं, रहे हैं, हम तुमको अरे बता मैं देंगे बाद मफहूम में ना। बता तो रहा हूँ, मफहूम मैं समझा तो रहा हूँ। वो कह रहे हैं बताइए। तमाम कायनात का इल्म, तमाम कायनात का इल्म जो है लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। कहाँ तमाम लिखा हुआ? कायनात का इल्म हाँ, लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। लौह महफूज पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, समझे नहीं? और अपनी दूसरी किताब मलफूजात हकीम उल उम्मत में कह रहे हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का एक जुज है, लोहे महफूज का जो इल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के साम का एक जुज है, वो जुज जो लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। इतना इल्म उसका एक अल्लाह जुज ताला ने है दिया है इल्म। नबी को कि वो लोहे महफूज वाला इल्म जो है वो जुज है, एक जुज। जबकि तमाम कायनात की तकदीरें, मौत, जिंदगी, औलादें, रूहें, सब कुछ बात दुनिया की लोहे महफूज पे लिखी हुई है। कौन कब मरेगा, सब लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। तो तुम्हारे थानवी कह रहे हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का एक जुज है, जुज। अब जब तुम्हारे वो थानवी जुज माने हैं तो जो तुम्हें लौह ये बातें ना महफूज पे बताते लिखा तुम्हारे हुआ आलिम, है। ये बातें तुम्हारे आलिम ना बताते तुम्हें। नबी की तनकीस करना तुम्हें बताते हैं कि नबी की शान घटाओ की सूरत से, वो तुमने सीख लिया है। ये नहीं सीखा बाबू, कि अल्लाह ताला हम ये कुरान बात तो मुकद्दस कभी में मन में नहीं इरशाद करेंगे। फरमाता है, हम ये अर्रहमान बात अल्लमल कभी मान नहीं सकते कुरान हैं। खलकल इंसान अल्लाहुल बयान। अल्लामाहुल बयान की तमाम तफसीरों में पढ़ के देखो, तुम तमाम तफसीरें पढ़ लो, जितनी भी तफसीरें तुम्हारे पास हो पढ़ लो, सब में हम लिखा तुम्हारी हुआ है बात समझ रहे हैं, हम तुम्हारी बात कि समझ सब में रहे हैं। लिखा हुआ है हम कि ये बात कहीं अल्लामाहुल पढ़े बयान नहीं का है, माना है इसलिए इंसान का माना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामाहुल बयान का माना है कि अव्वल और आखिर की बात बताने वाले, वो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने शुरू से, अब जो तुम जो कह रहे थे ना, अभी सवाल कर रहे थे आदम की बातें किसने बताई, वो कुरान के अंदर पूरी मौजूद है। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मतलब वही के अंदर जरिए नहीं बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इल्हाम भी हुए हैं। ये नहीं है कि वही के जरिए बताया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आदम से लेकर और क़यामत तक की बातें नहीं बताई हैं? ये कहाँ से सीखा तुमने कि मतलब ये दज्जाल निकलेगा और फला काम होगा और फितना पैदा होगा, ऐसा होगा वैसा? किसने बताया? ये किसने बताया साहब? अच्छा ये किसने बताया? ये मान रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं। बताए हैं नहीं? सुनो, हाँ, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, लेकिन तुम जो लफ्ज लाए हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब जहान अरे का, फिर वहीं आ गए। अरे मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। आलिमुल गैब में और इल्म गैब में फर्क है। इल्म गैब वो होता है जो अता किया हुआ होता है, आलिमुल गैब वो है तो जो हुजूर खुद से सल्लल्लाहु है। अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें, सुनो बता रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें बताए हैं, तो क्या बहुत सी बातें बताए तो आलिमुल गैब थोड़ी हो गए? कौन कहता?
फिर वही बात जो उसने कहा था, जो अभी हॉल पे है, जो उसने कहा उन्होंने था ये कहा कि था हमारे इल्म कोई भी गैब, उलमा इल्म गैब के बारे में कहा होगा, आलिमुल गैब के बारे में नहीं कहा। हमारा किसी का ये इल्म अकीदा गैब नहीं है, कहा था, किसी बरेलवी का ये लेकिन अकीदा बहुत नहीं उलमा, है कि नबी बहुत करीम तुम्हारे सल्लल्लाहु उलमा, अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। ये तुम तोहमत लगा रहे हो बेबी जी की हमारा किसी का अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया, और वो हम कुरान से साबित करते हैं। दो आयतें बिल्कुल साफ रोशन है नबी के इल्म गैब साफ पर। रोशन है हम। एक आले हाँ, इमरान सूरह लेकिन आले इमरान आयत तुम नंबर मानोगे 179, नहीं, एक सूरह सुनो, जिन। तुम मानोगे नहीं, अपनी जिद पड़े रहोगे। हम कई कई तुम्हारे उलमा से सुने हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, साफ एकदम बयान में हम सामने एकदम फेस टू फेस सुने हैं। तुम्हारी ऐसी समझ बात मैंने नहीं देख कर ली, रहा है। तुम्हारी समझ में फर्क है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो बात को। जब मैंने तुम्हारी समझ अभी अबे, देख ली तो तुम तुम समझोगे जो क्या? बात कर रहे हो, तुम जो बात कर रहे हो कि हमारे कोई भी उलमा ये नहीं कहते नहीं हैं कह कि हुजूर सकते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, नहीं कह बल्कि ये सकते, तुम कहते झूठ हैं बोल रहे हो, कि उनको इल्म का गैब दिया तुम गया है। झूठ बोल रहे ये हो। कहते हैं ना। इल्म गैब मानते हैं कि इल्म गैब अता किया, इल्म गैब ये कोई नहीं कहता हमारे बरेलियों हाँ, में कि आलिमुल गैब है नबी। हाँ, तुम्हारे बरेली में कोई उलमा ये नहीं ना कहता है कि आलिमुल गैब हैं। नहीं, तुम मानोगे नहीं, फेस टू फेस मैंने बयान में सुना है तुम्हारे अब तुम बरेली झूठ उलमा बोलने से। के लिए बोलते रहो, तुम्हारे पास तो झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। वही तो हम भी कह रहे हैं। तुम्हारा बोलने बोलना से नहीं पहले माना जाएगा। तुमको हम देखो कहेंगे, मेरी तुम बात मानोगे सुनो, नहीं। मेरी बात सुनो। किसी दावे अगर सुनो यही मेरी बात बात है, सुनो, अगर सुनो यही मेरी बात बात सुनो, है कि मेरी हम बात जो सुनो, बात बताएं तुम मानो मेरी नहीं, बात सुनो। अब मानूंगा तुम नहीं जो ऐसे में। बताए अगर हम भी देखो झूठ मानते तो क्या हम जो करोगे? तुमसे बताएंगे, दावा करेंगे, वो हम तुम्हें उसी दलील देंगे। तुम्हारे पास अगर कोई ये दावा कर रहे हो तुम कि तुम्हारे आलिमों ने ऐसा कहा, तुम्हारे पास कोई दलील पेश करो। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील लाओ। तुम्हारे पास क्या दलील है ऐसी कि हमारे किसी बरीवी ने कहा क्या नबी आलिमुल गैब है? अब रिकॉर्डिंग नहीं की है तो कहाँ से लाएं? काय की रिकॉर्डिंग? हैं? काय की रिकॉर्डिंग? काय की रिकॉर्डिंग? तो फिर सुनेगा कैसे? अब ये बताओ तू मुझे कि रिकॉर्डिंग से या किसी के, मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ, इससे मुफ्ती से फतवा ले लोगे तुम? फतवा दे देगा मुफ्ती इस पर? किसी की रिकॉर्डिंग तुम किसी मुफ्ती को दिखाने लगोगे कि साहब देखो ये ऐसे कैसे कह रहे हैं, ये इस पर जो तकरीर कर रहे हैं, या मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ और मैं कोई मतलब ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर लूं, तो क्या इस इन बातों पे तुम मुफ्ती से फतवा लेके दिखा दोगे अपने दारुल देवबंद वाले से? फतवा दे देंगे उन वो? पर अगर हमको पूरा एतराज करना होगा तो हम पूरी बात उनका साफ लफ्जों में खोल कर रखेंगे। अगर नहीं समझ दिया गए? फतवा अगर तो? उससे भी नहीं होगा तो उस मौलाना को हम बुलाएंगे। अगर फतवा नहीं दिया तो? हैं? ऐसे रिकॉर्डिंग पे और फोनों पर बात करने का तो पर कोई तुम्हारे भी मुफ्ती सुनो, फतवा बता नहीं रहे देता हैं, है। तुम्हारे हमारे हमारे और उलमाए ये देवबंद, रिकॉर्डिंगें तुम्हारे और बरेली फोन की उलमाए, बातें जो है ये हुज्जत नहीं होती, हुज्जत होती है अकाबिर के कलाम, जो किताबों से होता है। किताबों से साबित करना पड़ेगा तुम्हें। हमारे उलमाए देवबंद तुम्हारे बरेली उलमा की तरह नहीं है, जो छोटे छोटे मौलवी जो आज ही पैदा होते हैं वो भी फतवा देने लगते हैं। हमारे उलमा ये नहीं ना, है हमें फतवा देने की जो जरूरत भी नहीं है। हम चाहे फतवा कोई भी चाहे अपने अकाबिरों का दिखाते हैं फतवा। हमें फतवा देने की जरूरत नहीं है। हम अगर कहते हैं कि अशरफ अली थानवी काफिर है तो हमारे अकाबिरों का फतवा है, हम नहीं कहते खुद के काफिर है वो। अब उसे सड़े सड़ाए को काफिर को हम क्या काफिर कहेंगे उसे? वो तो काफिर है ही। शमसुद्दीन को तुम पहचानते होगे, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को तुम पहचानते होगे। कौन से शमसुद्दीन? मुफ्ती शमसुद्दीन तुम्हारे बरेली के बहुत बड़े मुफ्ती माने जाते हैं। चलो मैं जानता नहीं हूँ, होंगे फिर नहीं जानते हो? देख लेना, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बरेली है, लेकिन न जाने कितने उलमा उनके खिलाफ हैं। तो ये कैसे हो गया? तो इख्तिलाफ तो होता आलिमों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ में भी बरकत है। इख्तिलाफ तो होगा उलमा इकराम में। ये तुम क्या नई बात कर रहे हो? तुम अभी कुरान में ये हदीस पढ़ी है? उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? फिर से एक बार कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ में भी बरकत है। इख्तिलाफ तो उम्मत में रहेगा। हाँ, इख्तिलाफ तो रहेगा उम्मत में। कभी फुरूई मसाइल पे होगा, कभी किसी मसाइल पे होगा, इख्तिलाफ तो रहता है। अकीदे की बात बताओ, अकीदे की बात करो। फुरूई मसाइल में उम्मत में इख्तिलाफ रहा है, बुजुर्गान दीन में इख्तिलाफ चला रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कभी नहीं कह सकते हैं कि मेरी उम्मत के खिलाफ बरकत है, क्योंकि आपने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत में कभी इख्तिलाफ ना हो। अब जब तुम जाहिल हो, मुझे मंजूर नहीं है। जाहिल हो तो तुम्हें क्या समझाया जाए? ये बताओ कि तुम यजीद को क्या मानते हो? सुनो, हाँ, अगर क्या मानते हो यजीद को? तो फिर यजीद को क्या मानते हो? ये बताओ, यजीद को क्या मानते हो? अरे यजीद को क्या मानते हो तुम? बात पूरी हो जाने दो। चलो पूरी करो। पूरी होने जाने दो। तुम कह रहे हो कि आपने क्या कहा है कि मेरी उम्मत के इख्तिलाफ में भी बरकत है। हुजूर ने दुआ मांगी थी अल्लाह से, या अल्लाह मेरी उम्मत में कभी इख्तिलाफ पैदा ना हो, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि नहीं, ये मुझे कबूल नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है, तुम्हारी उम्मत में इख्तिलाफ होनी ही होनी है। तो जिसके लिए अल्लाह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगे, उसी में अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देंगे कि मेरी उम्मत के इख्तिलाफ में बरकत है। बोलूं? हाँ बोलिए। यजीद को क्या मानते हो? अबे इसका जवाब दो पहले। इसका जवाब दे रहा हूँ मैं, इसका जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं इख्तिलाफ दिखा रहा हूँ, तुम उम्मत का जाहिल आदमी इख्तिलाफ दिखा रहा हूँ। यजीद को क्या मानते हो?
हैं? क्या मानते हो यजीद को? यजीद हाँ, यजीद के बारे में हम नहीं जानते हैं, वो क्या क्यों है नहीं क्या जानते? नहीं है, किस पर अमल करते हैं, यजीद को, उसका अकीदा कैसा है। यजीद के लिए हमारे इमाम ने सुकूत किया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुकल्लिद हैं हम। क्या है, हमारे, मुकल्लिद हैं? हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं हम, उनके मुकल्लिद हैं। तुम तकलीफ हमा- करते हो? हाँ, हमारे, तुम ना करते हो? हैं? तुम नहीं करते हो? क्यों नहीं भाई, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह हम लोग का इमाम है, इमाम है नहीं? तो उन्होंने सुकूत इख्तियार बिल्कुल इमाम है किया। हम लोग का। सुनो, उन्होंने सुकूत इख्तियार किया यजीद के बारे में, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह उसे काफिर कह रहे हैं। तो अब इख्तिलाफ होगा इनमें दोनों में, क्या कहोगे अब? बोलो, इख्तिलाफ तो होगी। तो क्या कहोगे अब? लगाओ फतवा इन पे, कौन सा फतवा लगाओगे? देखो बहुत सी बातें हैं जो आपने जायज भैया करार ऐसा की है यार, मेरे अंदर इतना लेकिन दिमाग नहीं है भैया, मेरे पास इतना दिमाग खाली जो मैं तुम जैसे जाहिल आदमी से तो मगजमारी बता रहे करता हैं हूँ। कि तुम बहुत मुझे सी मत ऐसी बताओ, चीजें मुझे हैं, मैंने सुनिए बहुत सी तुमसे ऐसी नदीम भाई, तुम ही करते रहो इनसे भैया, मेरे बस की बात ना है ऐसे आदमी से, बेवकूफ आदमी से। ये जाहिल को ये पता नहीं कि उसूल क्या है। सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना कि अरे, हुजूर काट इमाम फोन हनीफा ने, ये बात दिमाग चाट रहा है मेरा भी बहुत तेज। बेवकूफ आदमी है खाली, मुझे जबरदस्ती इसके समझ में तो कुछ दिमाग आना ही चाट रही है, ताहिर गाजी की टट्टी ने साला, ये टट्टी चाट के आया हुआ है। हट। जो सवाल किए हो उसका जो सवाल किए वो पूरा हो जाए। फिर सवाल होने दो, सवाल होने दो, चल सवाल करने दो, सवाल कर, के भात चल सवाल कर सवाल कर, चल दिमाग चाट रहा है कर सवाल कर। अब सवाल ही करेगा, कुछ जवाब भी देगा हमारा भी। भाग क्यों गया? चल सवाल कर। डरपोक का भाग क्यों गया? कहाँ भाग गया? चल हूँ तो मैं, सर सवाल कर। तुम ही हो ना बात कर रहे थे? हाँ, अभी तुम सवाल क्या किए? तो जी इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ। लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने हाँ। उसको काफिर कहा। ठीक है। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जब वो जिंदा थे तो उनका फतवा ये है कि कोई भी इंसान कोई इबादत का काम करके पैसा ले तो हराम है, लेकिन आज के उलमा ने जायज करार दी है। तो इससे पता ये चलता है कि बहुत से काम इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ये जायज नहीं है। हाँ। लेकिन आज के उलमा उसको चेंज किए हैं जमाने के हिसाब से। तो इससे तुम ये नहीं कह सकते हो जायज कर लिया, तुम ये नहीं जायज कर लिया, नहीं जायज कर लिया आज के उलमा ने। क्या आज के उलमा ने जायज कर लिया? जायज कर लिया? अरे हाँ, आज के उलमा ने जायज कर लिया। नहीं, ये जो इमाम आजम अबू हनीफा ने मना किया था उसे आज के उलमा ने जायज कर लिया। हाँ, जमाने के हिसाब से जायज किया, कर लिया। नहीं तो अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अशरफ अली थानवी की कब्र पर जाओ और उसकी मिट्टी लाओ, उसे चाटो। तो अब इख्तिलाफ हो गया इमाम आजम अबू हनीफा से, नहीं आज के उलमा का। अब लगाओ इन पे क्या फतवा लगाओगे? इमाम आजम पे फतवा लगाओगे, आज के उलमा पे लगाओगे? अबे जाहिल आदमी, चल क्या तुम्हारे उलमा कोई इबादत का काम? ये पता नहीं कि इख्तिलाफ किसे कहते हैं, मरदूस शैतान, दिमाग